LDA نے نیسپاک کی مدد سے لاہور ٹریم کا پہلا روٹ میپ تیار کر لیا ہے۔ ٹریم کلمہ چوک سے شروع ہو کر کلمہ چوک پر ہی اختتام پذیر ہوگی۔ مین بولیوارڈ گلبرگ میں 9 سے زائد اہم مقامات کو کور کیا جائے گا، جبکہ نیسپاک نے وزیر اعلیٰ کو حتمی پریزنٹیشن دینے کے لیے 3D ویڈیو تیار کر لی ہے۔ ویڈیو میں روٹ ایک سے دوسرے سٹاپ تک پہنچنے کا دورانیہ دکھایا گیا۔ روٹ کا آغاز کلمہ چوک سے ہوگا اور پہلا سٹاپ قذافی اسٹیڈیم ہوگا۔ قذافی سے حفیظ سینٹر، راجہ سینٹر، مین مارکیٹ سٹاپس بھی ہوں گے اور مین مارکیٹ سے ہوم اکنامکس کالج اور پھر مین بولیوارڈ پر واپس سے یو ٹرن ہوگا۔ یہ روٹ میپ کیا ہے، اس کی تفصیلات مزید ہمیں بتائیں گے در نایاب۔ جی در نایاب۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے لاہور ٹرام پروجیکٹ، جس پہ اب LDA اور نیسپاک بہت محنت کر رہا ہے، اور جب سے وزیر اعلیٰ نے ڈائریکشنز دی ہیں کہ اس کو پراپر ڈیزائن کریں، پراپر اس پہ کام کریں، اس کے بعد سے اس پہ بہت حد تک پیش رفت ہو چکی ہے۔ نیسپاک کی جانب سے اور LDA کی مشاورت سے ایک 3D ویڈیو تیار کی گئی ہے جس پہ ٹوٹل روٹ ڈیفائن کیا گیا ہے، اور جو لوگوں کو ایک ایمبیگوٹی تھی کہ کیسے ہوگا، کہاں سے چلے گی، اب وہ مکمل کی جا چکی ہے۔ سر، روٹ جو ڈیفائن کیا گیا نیسپاک کے ساتھ ویڈیو میں بہت کلیئرلی دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں سٹاپس ہیں، اس پہ کیا ملحوظ خاطر رکھا گیا؟ کیا وقت بچایا گیا، فیول بچایا گیا، اور لوگوں کی سہولت جہاں پہ زیادہ لوگوں کا اترنا آمد و رفت ہے وہ کاؤنٹ کیا گیا؟ دیکھیں جی، یہ بڑا انوائرمنٹ فرینڈلی منصوبہ ہے جس میں کوئی ایمیشن نہیں ہے، اور دوسرا جو اس کی کیپیسٹی ہے نا جی، ہم نے کوئی 5 یا 6 رکھیں گے ان کی ٹرین، جو پری فیزیبلٹی ہم نے کی ہے اس نے 12 اسٹیشن آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور یہ اس اسٹریچ میں جو شروع ہوگی کلمہ چوک سے جہاں ان کی کنیکٹیوٹی ہوگی ود ایون گرین لائن، یہ ہالی روڈ، مین بولیوارڈ اور MM عالم روڈ پہ جائے گا، مین مارکیٹ کو کنیکٹ کرے گا، قذافی اسٹیڈیم کو کنیکٹ کرے گا۔ یہ اس میں یہ جو ہمارا آپ کا ہیڈ وے ہے نا جی، ہر 10 منٹ کے بعد آپ کو اسی اسٹیشن پہ ٹرین نظر آئے گی۔ یہ ایک بہت ہی بہترین روٹ ہوگا۔ شارٹ روٹ کے بعد ہر 10 منٹ کے بعد دوبارہ ٹرین آئے گی، اور 15 منٹ کے اندر ہر صورت یہ روٹ کور کیا جائے گا۔ بہت بڑا روٹ ہے، اور اگر یہ روٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو LDA اور نیسپاک کا دعویٰ ہے کہ لوگ گاڑیاں چھوڑ کے اس ٹرام کو پریفر کریں گے، ٹرام کے ذریعے سفر کریں گے، جس سے نہ صرف وقت بچے گا بلکہ ایندھن کی جو کھپت ہے اس میں بھی کمی لائے گی۔ بہت شکریہ در نایاب۔ محکمہ بلدیات کا ترقیاتی پیکج تیار کر لیا گیا ہے۔ PC1 محکمہ PND بورڈ میں بھی جمع کرا دیا گیا ہے۔ لاہور کا ترقیاتی پیکج 78 ارب کا ہے، جو کہ بجٹ سے سڑکوں پر پیچ ورک، سیوریج نالیاں، گلیاں، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔ PC1 میں واسا اور بلدیہ کی ترقیاتی اسکیمیں بھی شامل ہیں۔ پروجیکٹ کے تحت 20 سے زائد ترقیاتی اسکیمیں مکمل کی جائیں گی۔ PND بورڈ جمعے کو ان اسکیموں کا PC1 منظور کرے گا۔ PC1 کے بعد PMU بنے گا اور ٹینڈر ہوگا، پھر کام شروع کیا جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ PC1 میں واسا اور بلدیہ کی ترقیاتی اسکیمیں بھی شامل کی گئی ہیں، اور یہ محکمہ بلدیات کا ترقیاتی پیکج تیار ہوا ہے۔ PC1 محکمہ PND بورڈ میں جمع کروا دیا گیا ہے۔ لاہور کا ترقیاتی پیکج 78 ارب روپے کا ہے۔ بجٹ میں سڑکوں کا پیچ ورک، سیوریج نالیاں، گلیاں، اسٹریٹ لائٹس اور دیگر ترقیاتی کام شامل ہیں۔ PC1 میں واسا اور بلدیہ کی ترقیاتی اسکیمیں بھی شامل ہیں۔ پروجیکٹ کے تحت 20 سے زائد ترقیاتی اسکیمیں مکمل کی جائیں گی۔ PND بورڈ جمعے کو ان اسکیموں کا PC1 منظور کرے گا۔ لیسکو میں گرین میٹرز کو آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ سنگین ہونے لگا۔ مارکیٹ میں بائی ڈائریکشنل گرین میٹرز کی مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کمپنیوں نے بائی ڈائریکشنل گرین میٹرز کی فراہمی میں کمی کر دی۔ میٹرز کی فراہمی کم ہونے کی وجہ سے مڈل مین صارفین کو لوٹنے لگا۔ بائی ڈائریکشنل گرین میٹرز کی قیمت میں 10,000 روپے تک کا خود ساختہ اضافہ۔ تفصیلات بتائیں گے اس معاملے پر شاہد ندیم سپرا۔ شاہد سپرا، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے سولر سسٹم میں استعمال ہونے والے بائی ڈائریکشنل گرین میٹرز کی خریداری کو آؤٹ سورس کرنے کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور مارکیٹ میں جو گرین میٹرز کی قیمت ہے اس میں تقریباً 10,000 روپے تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ لیسکو کے پاس جب گرین میٹرز کا سٹاک ختم ہوا تو اس کے بعد مارکیٹ سے خریداری کرنے کی اجازت دی گئی، اور سب ڈویژن اور سرکل کی سطح پر صارفین کو NOCs دیے گئے تاکہ وہ براہ راست جو لیسکو کے منظور شدہ مینوفیکچررز ہیں وہاں سے میٹرز کی خریداری کر سکیں۔ لیکن اس وقت مارکیٹ میں جو گرین میٹرز ہیں ان کی مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے، اور بالخصوص جو مڈل مین کا کردار ہے وہ انتہائی اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ مڈل مین کے ذریعے اگر ایک صارف
अपने मीटर्स की खरीदारी कर रहा है तो उसको तकरीबन 10,000 रुपये इजाफी अदा करना पड़ रहा है। और वो सार्फिन जो कि अब ख्वाहिश रखते हैं कि सोलर सिस्टम से बिजली बनाकर ग्रीन मीटर्स नस्ब करवाएं और ना सिर्फ खुद अपने बिलों में कमी लाएं बल्कि कंपनी को भी फरोख्त कर सकें, तो उनकी मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा हमारे साथ लगा कर रहे थे। मौसम की बात की जाए तो शहर में मौसम गर्म और खुश्क है, जबकि हब्स में भी मजीद इजाफा हो गया है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद मौसम का हवाला लेते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। मौसम के हवाले से बात की जाए तो मौसम ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। आवाम हालो बेहाल नजर आ रही है। गर्मी ने शिद्दत आज जम के दिखाई है। हब्स की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो रहा है और अब तक का सबसे गर्म और हब्स ज़दा दिन जो है वो आज महसूस किया जा रहा है। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, सूरज भी किरणें दिखा रहा है और यूँ सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला भी जारी है। आवाम बहुत परेशान नजर आ रही है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि 30 सितंबर तक हम लाहौर के मौसम में इसी तरीके से तब्दीलियाँ देखेंगे। कभी जो है वो गर्मी हब्स लाहौर के शहर के बासियों का जीना मुहाल करेगी तो कभी जो है वो सूरज की तेज किरणें चुभन का शिकार होंगी और लाहौर शहर के बासियों को खूब सताएंगी। कभी हवाएं चलेंगी, मौसम खुशगवार होगा, ठंडी ठंडी हवाओं में बारिश के बूंदें जब आवाम के साथ साथ हमारे रंग बिरंगे फूलों पर हर चीज़ पर पड़ेगी तो मौसमी कैफियत बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस की जाएगी। लाहौरियों को बताया जा रहा है कि आज आइंदा 24 घंटों के दौरान तकरीबन 5 से 10% बारिश के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन लाहौरिये फिर भी अपनी एहतियात को यकीनी बनाएं। आइंदा 24 घंटों के दौरान टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 219 के साथ लाहौर लुदतरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाएं आज मुकम्मल तरीके से लाहौर से गायब हैं। लाहौर ये हुए अपने काम काज की तरफ रवां दवा नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद के लिए नादरा में बायोमेट्रिक तस्दीक का मामला। FBI ने सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद के लिए बायोमेट्रिक करवाने की तारीख में तोसी कर दी। FBI ने बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए 31 अगस्त तक की मोहलत दे दी है। लाहौर टैक्स बार ने बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए टाइमलाइन बढ़ने के लिए मुतालबा किया था। इस हवाले से बात करेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। जी बिल्कुल, ई सहूलत नादरा में सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद को मुख्तसर वक्त होने के बाइस तस्दीक करवाने के हवाले से काफी मुश्किलात का सामना था, जिसके पेश नजर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड की सहूलत के पेश नजर जो तारीख मुकर्रर की थी उसमें तोसी कर दी है। FBI ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी करते हुए जो फर्म के नुमाइंदगान या इसके अलावा ताजर और इसी के साथ साथ जो शेयर होल्डर्स हैं उनको खुद को तस्दीक करवाने के हवाले से 31 अगस्त तक की जो डेडलाइन है वो दे दी गई है। जबकि इस हवाले से लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से SRO 350 में बायोमेट्रिक तस्दीक के हवाले से एक खुसूसी मरासला भी इरसाल किया गया था, जिसमें यह मुतालबा किया गया था कि तमाम सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद के लिए जो इस सहूलत नादरा में रजिस्टर करवाने के लिए तारीख मुकर्रर की गई है इसमें तोसी की जाए। उसी के पेश नजर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद के लिए इस सहूलत नादरा में तस्दीक करने के हवाले से जो तारीख मुकर्रर की गई थी उसमें तोसी की गई है। जबकि इसके अलावा बताया गया है कि हर साल माह जुलाई में जितने भी सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड अफराद हैं उनको बायोमेट्रिक तस्दीक करवाना लाजमी करार दिया गया था और इसी के पेश नजर जो तारीख थी वो मुकर्रर की गई थी और पाबंद किया गया था कि जितने भी फर्म के नुमाइंदगान, ताजर और शेयर होल्डर्स हैं वो नादरा इस सहूलत में बायोमेट्रिक करवाएं। ठीक है कलीम, बहुत शुक्रिया। रेलवे पुलिस एहलकारों को तनख्वाह में फिक्स TAD देने का मामला है, जबकि चेयरमैन रेलवे ने फिक्स TADA देने से रोक दिया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं। सईद, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, रेलवे पुलिस एहलकारों को तनख्वाहों में फिक्स TADA देने का ये मामला है कि चेयरमैन रेलवे ने पुलिस एहलकारों को फिक्स TADA देने से रोक दिया है और चेयरमैन रेलवे ने इस हवाले से मेंबर फाइनेंस को एक मरासला लिखा है और मरासले के मुताबिक जो पाकिस्तान रेलवे के रूल के बरखिलाफ रेलवे पुलिस एहलकारों को जो है फिक्स TADA है वो देना काबिल कबूल नहीं है। तो यह हदायत की गई है चेयरमैन रेलवे की तरफ से कि TADA देने का अमल है मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए, जबकि DG विजिलेंस को मामले की इंक्वायरी और TADA की रिकवरी का टास्क है वो दे दिया गया है। जबकि चेयरमैन के अहकाम से रेलवे पुलिस एहलकारों में तशवीश जो है वो पैदा हो गई है। उनका ये कहना है कि पहले ही रेलवे पुलिस की तनख्वाहें हैं वो दीगर मुल्की सिक्योरिटी फोर्सेस की निस्बत बहुत कम है और मराद भी कम है। अब ये जो फिक्स TADA आइन के मुताबिक रेलवे पुलिस अपने बजट से देती थी, अब उसको भी रोकना जो है वो सरासर ज्यादती है और इसके खिलाफ
जो IT रेलवे पुलिस है उनको उनकी तरफ से राइट कहते हैं कि मेंबर तनाफ को एक रास्ता है वो लिखा जा रहा है ताकि वो इस मामले के ऊपर अपना मौक़िफ़ है वो दे सकें। जबकि सराय का ये भी कहना है कि पुलिस हकाम ने इस हक को लेने के लिए कानूनी कार्रवाई के लिए भी जो प्लानिंग है वो शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लाहौर की तंजीम 9 के मामले पर पीपल्स पार्टी लाहौर की तंजीम के लिए 16 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। क़यादत ने लाहौर में सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदों को फाइनल कर लिया और सीनियर रहनुमा मियां मिसबाह रहमान, फैसल मीर, राना जमील मंज, आसिफ हाशमी के नाम शामिल हैं। हमारे साथ हसन अली मौजूद हैं, मजीद अहवाल उनसे जानते हैं। जी हसन। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर की तंजीम 9 का जो मामला है, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर राजा परवेज अशरफ और दीगर रहनुमाओं ने 16 नामों को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया है। इस हवाले से जो 16 नाम है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भिजवाए जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इस वक्त बैरून मुल्क दौरे पर हैं, वो वापस आकर पंजाब की क़यादत से मुशावरत करेंगे इन 16 नामों पे और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पे लाहौर की तंजीम का ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि शॉर्ट लिस्ट किए गए जो 16 नाम हैं, इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मिसबाह रहमान, फैसल मीर, बैरिस्टर आमिर हसन, राना जमील मंज, फारूक यूसुफ घुरकी, जाहिद जुल्फ़कार खान, आसिफ नागरा, रहमान अजीज चंद समेत दीगर जो रहनुमा हैं वो इसमें इन नामों में शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन लाहौर के लिए डॉक्टर आयशा शौकत का नाम जो है वो भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है और ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि जैसे ही चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वतन वापस पहुंचेंगे तो पंजाब की क़यादत जो है वो उनसे मुशावरत करेगी इन तमाम नामों पे, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर, जनरल सेक्रेटरी और जो दीगर ओहदेदार हैं उनके नामों का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। हसन अली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का पहला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान और पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के बारे से आपको बताएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान, पंजाब क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का मुसवदे का जायजा लिया गया। मुल्क की तारीख का पहला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान और पॉलिसी बनाई जा रही है। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये भी कहा गया एक्शन प्लान और पॉलिसी आलूदगी के खात्मे के लिए गेम चेंजर साबित होगी। माहौलियात से मुतल्लिक स्टेक होल्डर्स का किरदार मुतय्यन किया जाएगा और उनकी जानिब से ये भी कहा गया हर स्टेक होल्डर क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के तहत काम करेगा। पंजाब वुमेन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी का 30वां इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में हुआ। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने इजलास की सदारत की। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया और पिहोटा को सियालकोट और बहावलपुर में नए दफातर कायम करने की मंजूरी दी गई। पिहोटा के 28वें और 29वें इजलास के मिनट्स की भी मंजूरी। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी की इस्तेदादकार बढ़ाई जा रही है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का ये कहना है। मज़ीद अहवाल जानेंगे, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिए इस इजलास के बारे में। जी, सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का 30वां इजलास जो है वो मुनक़िद हुआ और इस इजलास में न सिर्फ अथॉरिटी की जो कारकर्दगी है उसका जायजा लिया गया बल्कि सियालकोट और बहावलपुर में पिहोटा के नए दफातर के क़याम की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के इस इजलास से जो है वो इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था कि जो अथॉरिटी की इस्तेदाद कार है उसको बढ़ाया जा रहा है और जो पियोटा की जानिब से इंसानी पेमेंट कारी का जो गैर कानूनी कारोबार है उसमें मुलव्वस अनासर के खिलाफ जो कार्रवाई है वो बेहतरीन है और उस पर सुराहा अथॉरिटी की कारकर्दगी को सूबाई वजीर ने और उनका ये कहना था कि ऐसे अनासर को किसी सूरत रायत नहीं दी जाएगी और मजीद जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी गैर कानूनी ट्रांसप्लांट के हवाले से। इस मौका पर जो है वो इस इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी राजा मंसूर, एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर वसीम, डीजीपी होटा डॉक्टर शहजाद अनवर, डॉक्टर इजहार चौधरी और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदे डॉक्टर मुश्ताक शलहरिया, प्रोफेसर आसिफ गुल और महकमा खजाना और दीगर जो हुकाम हैं वो शरीक हुए। जबकि डीन PKLI प्रोफेसर फैसल डार और प्रोफेसर आरिफ नदीम जो है उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए जो है वो पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के इजलास में शिरकत की। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।